The first coordinate system is the Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Second is the spherical or cylindrical. Cartesian coordinate x, y, z, or spherical r, theta, phi, or cylindrical rho, phi, z. Or the range of the coordinate system, the range x vary from minus to infinity to plus infinity, minus infinity to the plus infinity, or y similarly minus to infinity to plus infinity, z minus infinity to plus infinity. So the r vary from 0 to infinity, theta vary from 0 to pi, or phi vary from 0 to 2 pi. And here is the rho vary from 0 to infinity, phi vary from 0 to 2 pi, or z vary from minus infinity to the plus infinity. So z same वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा इस सिलेंड्रिकल ਦੇ ਵਿੱਚ स्फेरिकल से फाई ਦਾ जो सिलेंड्रिकल जो फाई है जो स्फेरिकल से रोल प्ले करता है वही सिलेंड्रिकल से करेगा, तो फिर रेंज भी सेम होगी ना जी, और ये माइनस इन्फिनिटी टू क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो वेलोसिटी आप ऐसे फाइंड कर। सो द रेफरेंस फ्रेम दे अकॉर्डिंग, रेफरेंस फ्रेम दे रिस्पेक्ट अपने पोजीशन देखनी पार्टिकल दी, तो मैं पोजीशन वेक्टर ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। पोजीशन वेक्टर को we represent as the xi cap, yj cap, zk cap, तो ये तीन कंपोनेंट्स अपन लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर में। तो if the position vector vary with the time, it means particle in the motion. So particle the motion ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਸੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦ x ਡਾਟ i cap plus y डॉट j cap plus z डॉट द k cap। मैंने डेरिवेटिव ले लिया, मतलब आप ऐसे राइट कर सकते हो x डॉट क्या होएगा dx by dt, और that is the acceleration of particle in Cartesian coordinates. So we know the velocity. Velocity is equal to the x dot I cap, y dot the j cap, z dot the k cap. So we can calculate the, again we take the derivative with respect to time, and we take here the double dot of the y coordinate. So we write as the here axi cap, ayj cap, az the k cap. So these are the component of the acceleration of the particle along x direction, along y direction, or along the z direction. So next ਅਸੀਂ write कर सकते हैं in the spherical coordinate, the spherical coordinate system represent as, just consider the position of the particle with respect to the region O. Just consider the x coordinate, the y coordinate, the z coordinate.
the position of the particle with respect to the coordinate system x, y, r, that position vector is the r vector. So let the point P r, theta or phi. So here we make the angle, that angle is the theta, that angle is the genus angle, and we take the projection of this particle and drop the perpendicular on this point. Here PQ is the perpendicular on the OQ point. So that is the 90 degree angle. So that angle OQ make the x-axis, that angle is the phi. That is angle name is the azimuthal angle, the zenith angle and azimuthal angle. So थीटा दसता है कि आर वेक्टर है कितना इंक्लाइन है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, और फाई बताएगा कि ये प्लेन जो रोटेशन देगा अबाउट द जेड एक्सिस, तो फाई द वैल्यू ਜਿਹੜਾ फाई ਤੋਂ ਆਪਾਂ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। सो ਅਸੀਂ मैं ਇਹਦੇ पैरेलल लाइन ड्रॉ ਕੀਤਾ वाई एक्सिस ਦੇ, ठीक है। मेरे को एक पॉइंट मैं ਇੱਥੇ कंसीडर कर लेना m पॉइंट है, तो x एक्सिस दे एक लाइन में ਇੱਥੇ परपेंडिकुलर ड्रॉ ਕੀਤਾ, ये प्लेन है, ये वाला जो है प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये कंसीडर कर लेना मैं कोई मेरे को m पॉइंट है, तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ OM है वो x ਦੇ इक्वल है, ठीक है। जस्ट कंसीडर करके चलते पे ਆਪਾਂ, और ਜਿਹੜਾ PQ है ਉਹਨੂੰ मैं z ਦੇ इक्वल मानदा ਪਿਆ ਜੀ, और जो MQ है वो y है, ठीक है। ये सानू कंसीडर पता होना चाहिए। तो मैं इथे ट्रायंगल लेट करदा पे, ट्रायंगल केड़ी मैं लेट करदा पे जी, लेट द ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल MOQ। तो MOQ तो ਆਪਾਂ फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल MOQ, for the right triangle MOQ, तो we can calculate the value of the cos phi. Cos phi is equal to the here we write the OM equal to the OQ. OM ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਮੈਂ OQ ਨੂੰ OQ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, x is equal to ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ OQ cos phi। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ sin phi ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ, तो y कितनी इक्वल आ जाएगा OQ द sin phi। ए वाली सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। हुन तुसी एक ट्रायंगल होल लेट करनी है, ए वाली राइट ट्रायंगल है, ये एंगल राइट ट्रायंगल है, तो फिर मैं इथे लेट केडी करदा पे ट्रायंगल, और जस्ट ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो मैं इथे ट्रायंगल लेट करदा पे जी OP तो Q। तो इथों आप अगेन ये आर है, ये हाइपोटेन्यूज होएगा, तो फिर आप अगेन फाइंड आउट करोगे साइन थीटा, ठीक है, जो cos थीटा, पहले cos थीटा कर रहे थे, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा PQ ओवर द OP, ठीक है जी। तो आप राइट कर सकते PQ साडे कोलो z होएगा, इथे गल याद रखनी है, PQ z होगा, तो z की वैल्यू आप z की लिख दिया OPR है, ठीक है जी। इथे OP आप कंसीडर करांगे, OP के इक्वल है R दे इक्वल है, तो फिर इथों जो z की वैल्यू कैलकुलेट की, z की आ गया R cos थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो सिमिलरली आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा ये वाला OQ ओवर R, तो OQ दा वैल्यू फाइंड आउट हो गया R साइन थीटा, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। तो आप क्या कर सकते हो, आप अब यूज करोगे यूजिंग द 4 इक्वेशन इन द 1 and 2, यूजिंग द 4 इन 1 and 2। तो x क्या मेरे को देगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा r sin थीटा द cos phi, y क्या आ जाएगा r sin थीटा द sin phi, और z क्या आ जाएगा इक्वल टू ये वाला इक्वेशन r cos थीटा। तो ये रिलेशन हो गया साडे कोलों, द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड द जेड़ा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट।
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਜਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 6 ਹੈ, ਇਹ 7 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ 5 ਦਾ 6 ਦਾ 7 ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਕੇਅਰ ਕरोगे x ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਐਡ करोगे y ਸਕੇਅਰ z ਸਕੇਅਰ, तो ਸਾਨੂੰ r ਸਕੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ठीक है, आप ये रिलेशन भी याद कर सकते हो। जे y तो x ਨੂੰ डिवाइड करते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो y अपॉन x क्या होगा, tan फाई होगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारे टर्म, तो tan फाई होएगा। तो z तो आपको पता ही है, cos थीटा z अपॉन r क्या होगा, जस्ट आप cos थीटा लिख सकते हो, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। ठीक है, ये आप एक रिलेशन हो गया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਂਡਰਿਕਲ ਸਫੈਰਿਕਲ ਟੈਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, next आ गया था यूनिट वेक्टर। the unit vector r cap, the theta cap and phi cap। so ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ r square ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। we know that r vector is equal to xi cap, y j cap, z k cap। so we substitute the value of the x is equal to r sin theta cos phi I cap, y r sin theta the sin phi the j cap, or z r cos theta the k cap। so if we take the common r and we write as r common sin theta cos phi I cap sin theta sin phi the j cap cos theta the k cap, or we write as the r vector upon r। so we take the magnitude and here we write the sin theta the cos phi I cap sin theta the sin phi the j cap cos theta the k cap। so these values known as the r cap, and here we have the value of the sin theta cos phi I cap sin theta sin phi the j cap cos theta the k cap। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ the first equation। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੀਟਾ ਦਾ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट द यूनिट वेक्टर थीटा कैप। तो यूनिट वेक्टर थीटा कैप को कैसे फाइंड करोगे, जस्ट कंसीडर कर लो कि साडे कोल अगेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x y और z, और ਅਸੀਂ थीटा ਨੂੰ चेंज कराना है तो जस्ट मैं ऐसा अज्यूम कर लेना, एक साडे कोल वेक्टर a है द p वेक्टर, और एक वेक्टर a है द q वेक्टर। ये p है साडे कोल p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, और आपने क्या किया, जस्ट ये एंगल थीटा है, और तुसी जस्ट ए वाला वेक्टर जो है ना, ये वाला वेक्टर इधर नु वेरी करता है, थीटा नु वेरी करांदे पे ਆਪਾਂ जिस वेक्टर नु कैलकुलेट करांगे वो ही वेरी करेगा, और इथे r अपन ने कांस्टेंट कंसीडर किया है। ठीक है, मैं ऐसे लिखता पे जस्ट ये OP वेक्टर है। ठीक है, OP वेक्टर नु मैं r वेक्टर ही लिखा है। ठीक है, तो OQ वेक्टर नु ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ रिप्रेजेंट करना, ये OQ वेक्टर है। ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ PQ वेक्टर होएगा, ठीक है, जस्ट एक मेरे को ਆਪਾਂ जस्ट एक r वेक्टर हो गया। ठीक है, एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQ वेक्टर हैगा, तो मैं पहले OP वेक्टर ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ऐसे करके लिख सकदा मैं, ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ जस्ट। ठीक है, मैं ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ r sin थीटा cos phi I cap plus r sin theta the sin phi the j cap plus r cos theta the k cap। so मैं ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ जस्ट ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ OQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड करनी है। OQ को आप ऐसे लिख सकते हो OQ वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन में मैं 2 कंसीडर कर लिया,
ओ क्यू वैक्टर ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ओ क्यू ਵੈਕਟਰ ਥੀਟਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ d ਥੀਟਾ मतलब थीटा ਨੂੰ चेंज कर दे पे ਆਪਾਂ तो r तो नहीं चेंज होगा r sin तो थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो थीटा प्लस d थीटा तो cos फाई एज इट आ जाएगा आई कैप सिमिलरली r sin थीटा प्लस d थीटा लिख देता sin फाई को आपने ऐसे लिख देता j कैप और इधर आ जाएगा r cos थीटा प्लस d थीटा और k कैप आ गया ठीक है ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया और आपने फाइंड क्या करना पी क्यू वेक्टर जिसको आप ऐसे राइट कर सकते हो पी क्यू वेक्टर में आप डी थीटा वेक्टर लिख सकते हो ठीक है आप डी थीटा वेक्टर करते हो और पी क्यू को आप ऐसे लिख सकते हो ओ क्यू वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर तो अब जब इनू आप सबट्रैक्ट करोगे थर्ड चो सेकंड इक्वेशन नु तो ਅਸੀਂ ऐसे लिख सकते हैं d थीटा वेक्टर के इक्वल आ गया d थीटा वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हो आप r sin जस्ट cos फाई तो कॉमन आ जाएगा इसमें ठीक है जस्ट cos फाई को कॉमन कर लो cos फाई कॉमन हो गया तो आप लिख सकते हो sin थीटा प्लस d थीटा और माइनस sin थीटा और इधर आ गया i क्या सिमिलरली आप इथों कॉमन कर सकते हो जस्ट इक्वेशन नु ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ r sin phi ਕਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ r sin phi ਕਾਮਨ करोगे तो इधर फिर अगेन क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस d थीटा और माइनस sin थीटा मैं सबट्रैक्ट करके फिर इक्वेशन ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ तो प्लस ਇੱਥੇ आप लास्ट टर्म ये वाली है और ये वाली सबट्रैक्ट हो रही है और आप r तो कॉमन आ जाएगा तो आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस डी थीटा और माइनस cos थीटा और के क्या ठीक है हुन इतने ना एक प्रॉपर्टी याद करनी है आपने जैसे आपको पता है साइन जो साइन हियर वी राइट ना ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री दी साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए बी होता है साइन ए cos बी प्लस cos ए द साइन बी और मैं इथे जस्ट एक प्रॉपर्टी हो जाए अपन ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी याद करनी है वाली cos a प्लस b वाली cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a द sin b तो मैं ये वाली इथे अप्लाई करता गया ये मैं ये वाली टर्म ले लेना ठीक है मैं इथे राइट कर देना तो मैं इथे लेट करता गया ये टर्म को sin थीटा प्लस डी थीटा और माइनस क्या कीता sin थीटा मैं इस टर्म को जो एक्सपेंड करूंगा पहले इथे फार्मूला लगूगा ये वाला तो sin थीटा आ गया और cos डी थीटा आ गया तो प्लस cos थीटा आ गया तो sin डी थीटा आ गया और माइनस क्या आता है sin डी थीटा मैं इथे माइनस sin डी थीटा लिखता हुन आ वाली टर्म और आ वाली टर्म में sin आता है तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख देना sin थीटा मैं कॉमन कर लिया मैं लिख देता cos d थीटा और here we write the -1 ठीक है ये हो गया तो इसको तो एज इट लिख देता cos थीटा तो sin d थीटा और ये ना d थीटा है ना ये वेरी स्मॉल है ये अप्रोच करता है 0 ਨੂੰ ठीक है 0 तो नहीं है पर अप्रोच टू 0 तो फिर ये 1 होगा क्योंकि आपको पता है जब ये अप्रोच करेगा तो cos d थीटा को क्या लिख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली 1 और sin d थीटा को क्या लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली d थीटा तो जब ये वाली वैल्यूज आप फिल करोगे इथे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी sin ठीक है ये तो 1 हो के सीधा ही 0 हो जाएगा तो इथे cos थीटा लिख दिया तो प्लस d थीटा लिख देता तो फिर टर्म आ गई दी cos थीटा द d थीटा ठीक है ये इक्वेशन मैं 5 कंसीडर कर लेना तो मैंने यूज 5 होगी सिमिलरली जे तुसी आ वाली टर्म ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ऐसे करके ठीक है एक टर्म मैं और लिख देना जे cos थीटा प्लस d थीटा माइनस cos थीटा ਨੂੰ सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा सेम ऐसे ही करना है आपने ये प्रॉपर्टी एफ को फिल करके आपको माइनस मिलेगा ठीक है और sin थीटा मिलेगा और d थीटा मिलेगा ठीक है ये टर्म 6 हो गई साडी तो अब यूज कर लो 4 में ठीक है यूजिंग 4 5 एंड 6
in 4. So we have the d theta vector is equal to r cos phi, r cos phi ये वाली टर्म ਨੂੰ मैं ये लिखूंगा cos theta द d theta, फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये टर्म माइनस की है, और इतने मैं लिखूंगा पहले माइनस r sin phi और ये क्या आ गया sin theta, तो नाल आ गया d theta। ठीक है जी, और सॉरी ये तो सेम ही आएगी, प्लस आएगी क्योंकि इतने एक गल नोट करो ये सेम है ना। ठीक है, मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ r sin phi, ठीक है, और ये वाली टर्म cos थीटा द d थीटा। हाँ ये माइनस की आएगी थर्ड वाली, ये वाली ठीक है, तो इधर r, ठीक है, माइनस r sin थीटा द d थीटा। ठीक है, इतो तुसी कॉमन कर सकते हो r नु तो d थीटा नु, सारी टर्मां च r d थीटा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो r d थीटा cos phi cos थीटा प्लस sin phi cos थीटा, sorry here we write the i cap, here we write the j cap और here the k cap क्योंकि वो तो है था साथ में, तो फिर i cap भी लिखोगे, इधर j cap आएगा और प्लस माइनस आएगा, ठीक है, साइन थीटा द के कैप। ठीक है, ये आप कैसे करके लिख सकते हो डी थीटा वेक्टर होगा। हुन ਅਸੀਂ जे इस वेक्टर ਨੂੰ द मैग्नीट्यूड दे ऐसे फाइंड करते हो, जब इस वेक्टर का ऐसे करके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो सारी टर्म का स्केयर करोगे, इसका भी आई स्किप करके दे कोफिशिएंट का, फिर इधर कोफिशिएंट इधर स्केयर करोगे सारियां का, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी आर डी थीटा। ठीक है, अब करके देख लेना। तो अब ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर ये मैग्नीट्यूड को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो थीटा कैप मिलेगा। मींस आप थीटा कैप को ऐसे भी लिख सकते हो डी थीटा वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डी थीटा। तो दो डी थीटा वेक्टर अभी फाइंड किया अपने, ये वाली इक्वेशन है साडे कोल, ये वाली, ठीक है। तो फिर जब तुम डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा cos phi द cos थीटा आई कैप प्लस, ठीक है, आप राइट कर सकते हो द साइन फाई द cos थीटा द जे कैप। ठीक है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, और माइनस आएगा साइन थीटा द के कैप। ठीक है, ये साडा हो गया द थीटा कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन नु मैं कंसीडर कर लेना, द क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ओके है जी। तो नेक्स्ट जो आप फाई कैप कटना चाहते हो तो फाई भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। यूनिट वेक्टर फाई कैप। So again consider the coordinate system, the x, y and z. So let the point position of the particle, consider the perpendicular drop. So again the angle is the phi, but we'll take the next vector that consider the m vector, that consider the n vector, और that angle is the d phi। और जब तुसी एडे करके एक प्रोजेक्शन ड्रॉप करोगे ऐसे करके, तो फिर एक कितने प्रोजेक्शन आंदा पिया जी। ठीक है, तो अब ये दो वेक्टर जेडे है ना, ये वेक्टर जो मिलता पिया ना क्यू पॉइंट, ये इस फाई दे करके मिला आपको। ठीक है, फाई का वेरिएशन हुआ है, तो फाई वेरी किया, तो फिर आप ऐसे करके लिख सकते हो फाई वेरी किया, तो फिर ये तो आर वेक्टर ही होगा। ठीक है, अगेन आपको को पता है ओपी वेक्टर क्या होता है, ठीक है, आर वेक्टर। तो अब ओ क्यू वेक्टर कटना है। ठीक है, ओ क्यू वेक्टर कादे करके मिले, एक फाई का वेरिएशन करके मिले, क्योंकि इथे ये वेक्टर वेरी किया है, जस्ट ये फाई एंगल, ये डी फाई एंगल है। आर वेक्टर जस्ट वी राइट द आर वेक्टर ऐसे लिख दियो द cos फाई, और हियर वी राइट द आई कैप आर sin थीटा द sin फाई द j कैप प्लस r cos थीटा द k कैप। Similarly we write the OQ vector r sin theta
इधर लिखोगे आप cos, ठीक है, हमने इक्वेशन में वेरी करना है, ये cos फाइव प्लस डी फाइव आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाइव प्लस डी फाइव द जे कैप प्लस क्या लिखोगे आर cos थीटा द के का भी, ये तो एज इट ही आ जाएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ठीक है, ये आप जैसे मान लो ये आपने इक्वेशन कंसीडर की थी, आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है क्योंकि आप डी फाइव वेक्टर करना जानते हो, तो मैं डी फाइव वेक्टर ਨੂੰ पता क्या लिखूंगा, पी क्यू वेक्टर, और ये पी क्यू वेक्टर होगा ना, अब वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, आप ऐसे लिख सकते हो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है। जो सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता है ये टर्म सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये ਇਹਦੇ ਚੋਂ सब्ट्रैक्ट होएगी, ਇਹਦੇ ਚੋਂ सब्ट्रैक्ट होएगी, तो r sin थीटा तो कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो cos 5 प्लस d 5 माइनस cos 5, तो i कैप आ गया, और प्लस आ जाएगा r, फिर इधर से sin थीटा कॉमन आंदा गया, r sin थीटा कॉमन आ गया, और sin 5 प्लस d 5 माइनस sin 5, तो ये जे कैप आ गया। और ਇੱਥੇ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ cos ਵਾਲੇ ਚ ਮਾਈਨਸ ਆਂਦਾ ਸੀ, तो ये a माइनस ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ माइनस, ठीक है, आई तो डी फाइव आएगा माइनस, तो साइन ऐसे करके जस्ट वी राइट द साइन फाइव आ जाएगा, ठीक है जी, साइन फाइव आ गया, और ये आर साइन थीटा ऐसे लिख दोगे, और ये वाली टर्म से सानू पॉजिटिव मिलता सी, इथे d5 पॉजिटिव होएगा और cos 5 मिलेगा साथ में, और ये इधर सॉरी आई कैप भी मिलना है और जे कैप भी मिलना है, और अब ये आपका d5 वेक्टर हो गया। जब ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, जो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, तो ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, जस्ट मैं इस वेक्टर ਨੂੰ ना थोड़ा रीराइट कर देना, जस्ट ऐसे लिखता हूं मैं, मतलब d5 वेक्टर ना ऐसे लिख सकते हो, r भी कॉमन हो गया, ठीक है, r sin थीटा दोनों चलता गया, दो कॉमन हो सकते, और वी राइट एज द r sin थीटा d5 भी कॉमन हो गया, r d5 sin थीटा कॉमन हो गया, और इधर रह जाएगा माइनस sin 5 i कैप प्लस cos 5 द j कैप। ये तो उसी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, ये टर्म फिर 1 हो जाएगी, तो उसके मैग्नीट्यूड आपका पता क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा r d5 sin थीटा, r sin थीटा d5 ऐसे लिख सकते हो, r sin थीटा द d5, ठीक है। जब इन्हों डिवाइड करोगे दोनों वेक्टर नु, ठीक है, वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो 5 कैप मिलेगा, तो 5 कैप क्या होगा, d5 वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द d5, तो जब ये दोनों क्वेश्चन डिवाइड किया तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास मिलेगा sin 5 द i कैप cos 5 द j कैप, ये इक्वेशन साडी होगी, ठीक है। 5 कैप वेलोसिटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, let p be the position of the moving particle, position of moving particle at any instant of time, at any instant of time, ठीक है, in term of r theta and phi with respect to the reference frame as shown in the figure, reference frame, ठीक है, as shown in the figure। तो जस्ट ऐसे समझना भी, ये फिगर जस्ट ऐसे करके है, ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, ये डेली पोजीशन रिप्रेजेंट की है इंस्टेंट ऑफ टाइम r थीटा फाई दी टर्म, ये और रिस्पेक्ट ए एक्स है, ये वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये रेफरेंस फ्रेम हो गया, r पोजीशन वेक्टर हो गया। तो आपको पता है कि r पोजीशन वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, r पोजीशन वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द r वेक्टर एंड द r कैप,
और आप इस क्वेश्चन का जो तुसी डेरिवेटिव लेंदे हो तो आपको पता है ऐसे करके आंदा है, डी बाई डी टी लिखोगे, आर कैप लिखोगे, इसको बी कहते हैं और इसका आप डॉट लिख दोगे, ये आर कैप एज इट आ जाएगा। इतने आर कैप भी वेरिएबल है, ठीक है, यदि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती हैगी तो आर कैप आ गया तो आर कैप डॉट आ गया, एक क्वेश्चन में 1 मान लेना। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆਰ ਕੈਪ ਦੀ, तो आर कैप डॉट की वैल्यू चाहिए, तो आर कैप की वैल्यू तो पता है तुहानू cos फाई, ऐसे करके लिखते हो साइन साइन थीटा cos फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई द जे कैप प्लस cos थीटा द के कैप, ठीक है। ਇਹਦਾ जब डेरिवेटिव करोगे डॉट कटोगे तो इतने थीटा ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, क्योंकि जो थीटा है ना वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है, जो फाई है वो भी टाइम का फंक्शन है। तो फिर पहले साइन का होगा फिर थीटा का होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, और फिर क्या आ जाएगा थीटा डॉट आ जाएगा। तो ये cos फाई को एज इट लिखता है अपने आई कैप का आगे, फिर साइन थीटा एज इट लिखता है, यूवी वाला फॉर्मूला लगता है, cos फाई का क्या आएगा माइनस साइन फाई और फाई डॉट आ गया ना, तो आई कैप आ गया। और सिमिलरली आप जब इधर साइन थीटा का करोगे तो क्या आएगा cos थीटा द थीटा डॉट, तो साइन फाई को आपने ऐसे लिख देता। फिर अगेन साइन का क्या होता है cos फाई, तो ऐसे आ जाएगा साइन थीटा को एज इट cos फाई, तो फाई डॉट जे कैप, तो इधर माइनस ए cos का क्या आएगा माइनस साइन थीटा द थीटा डॉट द के कैप। हम थीटा डॉट वाली टर्म देखते हैं आप, ये के थीटा डॉट वाली टर्म है, एक ये वाली है और एक ये वाली है लास्ट वाली, तो आप थीटा डॉट नु कॉमन कर सकते हो। जब थीटा डॉट नु कॉमन करोगे तो इक्वेशन आएगा cos थीटा cos फाई आई कैप, और here we write the plus cos थीटा sin फाई द जे कैप और माइनस sin थीटा द के कैप, ठीक है। आपने ऐसे लिख देता, तो आ दो टर्म फाई वाली ये और ये वाली, तो मैं फाई डॉट नु भी कॉमन कर लेना है, जो फाई डॉट नु कॉमन किया तो आ गया माइनस साइन फाई आई कैप, और इसके साथ ना वो साइन थीटा भी कॉमन हो सकता है, इसे देखो ये भी साइन थीटा आंदा पे, ये भी साइन थीटा आंदा पे, तो फाई डॉट तो साइन थीटा नु कॉमन कर लेने अपन, ठीक है। मैं ऐसे लिख देना इस इक्वेशन नु साइन थीटा द फाई डॉट कॉमन किया, इधर रह गया माइनस साइन फाई आई कैप, इधर आ गया cos फाई द जे कैप, ठीक है जी। और तुसी तन्नू पता है ये किहदे कोल हुंदा है, ये फाई कैप है, ठीक है, इनू क्या बोलते हैं आप फाई कैप, तो ये क्या है द थीटा कैप, तो इक्वेशन आ जाएगी थीटा डॉट द थीटा कैप प्लस साइन थीटा द फाई डॉट फाई कैप, और ये इक्वेशन आपका हो गया आर कैप द डॉट, तो ये इक्वेशन में 2 कंसीडर कर लेना है। तो जब ये यूज करोगे आप, ठीक है, 2 in 1 में, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप आर, तो इथे मैं आर डॉट की वैल्यू फिल करता पाया, तो इथे आ जाएगा थीटा डॉट द थीटा कैप प्लस साइन थीटा फाई डॉट द फाई कैप, तो आर नु मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आर डॉट आर कैप आर द थीटा डॉट द थीटा कैप, तो आर साइन थीटा फाई डॉट द फाई कैप, ठीक है। ये वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन, ऐसे डॉट आपको पता है ये रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ठीक है, इसको आप ए आर भी लिख सकते हो, ए आर आर कैप, तो ए आर की वैल्यू है आर डॉट, तो ये थीटा कंपोनेंट